हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष पारेख, स्टूडेंट ऑफ जीमर्स मेडिकल कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस और उसकी ब्रांचेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो हार्ट है वो हार्ट दो ब्रांच प्रोवाइड करती है फ्रॉम द आर्च ऑफ आउटा विच इज़ अ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड सेपरेट टू ब्रांचेस विच इज़ अ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. From brachiocephalic trunk, there arises further two branches, a right subclavian artery and right common carotid artery. Right subclavian artery from the outer border of first strip up to the lower border of teres major muscle, the part of the artery which is called as the axillary artery, and beyond this muscle it extends as a brachial artery. Now ये जो axillary artery है वो divide होती है by a pectoralis minor muscle into three parts. द पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी जो उसके मसल के प्रोक्सिमली है वो उसका फर्स्ट पार्ट है. द पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी विच इज़ पोस्टीरियर टू द पेक्टोरालिस माइनर मसल इज इट्स सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, एंड द पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी विच इज़ डिस्टली टू दिस पेक्टोरालिस माइनर मसल इज इट थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. उसके फर्स्ट पार्ट में से एक आर्टरी अरेज करती है, दैट इज अ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. फ्रॉम सेकेंड पार्ट अरेजिस टू आर्टरीज, thoracoacromial artery, and second is a lateral thoracic artery. From third part arises three branches: the anterior circumflex humeral artery, posterior circumflex humeral artery, and third is a subscapular artery. From subscapular artery arises the circumflex scapular artery. So आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिलेशंस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को. उसको समझने के लिए हम डायग्राम और अपनी नोट्स को कंपेयर करेंगे जिससे आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा. सबसे पहले देख लेते हैं अभी हमने जो पढ़ा है उसको अपनी नोट्स से कंपेयर करके. एक्सिलरी आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट टिप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल वेर इट कंटिन्यूज एज अ ब्रेकियल आर्टरी. Pectoralis minor muscle crosses the axillary artery and divides it into three parts. The first part, which is proximal to the muscle, second part, which is posterior to the muscle, and third part, which is inferior to the muscle. Relations include first part, second part, and third part. In first part, first of all, we will see the anterior relations comparing the diagram with our notes. सबसे पहले देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा है. एंटीरियर रिलेशंस ऑफ फर्स्ट पार्ट के अंदर स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, पेटिस्मा, सुप्राक्लेविकुलर नर्व, डीप फेशिया, क्लेविकुलर पार्ट ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल, क्लेविपेक्टोरल फेशिया एंड सिफेलिक वेन, लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी. देख लेते हैं हमारी डायग्राम में क्या है. यह है डायग्राम ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. सबसे पहले जो एंटीरियर रिलेशंस है इंक्लूड करती है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, ये जो आपको रेड में लाइंस दिख रही है, डॉटेड लाइंस, इट इज पेटिस्मा मसल. Then black circles can be seen as the supraclavicular nerves. Then another is a deep fascia, which is deep to this superficial fascia, which is a deep fascia. Then this muscle is the pectoralis major muscle. Then this bluish line, which can be seen as is a cephalic vein. Then the red line, which can be seen as is a thoracoacromial artery, which continues as a axillary artery. Then this black line can be seen as a lateral pectoral nerve, and this bluish line which can be seen as a clavipectoral fascia. Then lateral relations include the lateral cord of the brachial plexus and the posterior cord of the brachial plexus. The posterior relations include the first and second digitations of serratus anterior muscle, then first intercostal space along with its muscle. This nerve is a nerve to serratus anterior, which is the long thoracic nerve. Then it is a middle cord of brachial plexus. Then middle relations include the axillary vein. So देख लेते हैं हमारे नोट्स में क्या लिखा है. हमने पढ़ लिखा है एंटीरियर रिलेशंस के बारे में. देख लेते हैं पोस्टीरियर में क्या है. Is the first intercostal space along with its muscle, first and second digitations of serratus anterior, middle cord of brachial plexus along with the middle pectoral nerve. Then in the lateral relations include lateral and posterior cord of the brachial plexus. इन मिडिल रिलेशंस इंक्लूड एक्सिलरी वेन. सेकेंड पार्ट को समझते हैं इसके रिलेशंस को हमने डायग्राम से पहले. इट इज़ अ डायग्राम ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. इट्स एंटीरियर रिलेशंस इंक्लूड द स्किन, द सुपरफिशियल फेशिया, द डीप फेशिया, मसल इज अ पेक्टोरलिस मेजर मसल,
Then another muscle deep to the pectoralis major is a pectoralis minor muscle. Then the lateral lesions include two muscle and one cord, which is the short head of bicep brachii and coracobrachialis. Then cord is the lateral cord of brachial plexus. Then the posterior lesions include the posterior cord of the brachial plexus and subscapularis muscle. Then medial lesions include the medial pectoral nerve, then medial cord of the brachial plexus, and the vein is the axillary vein. So देख लेते हैं हमारे नोट्स में क्या लिखा है. The second part is including is the anterior lesions, skin, superficial fascia, deep fascia, pectoralis major and pectoralis minor muscle. Posterior lesions include posterior cord of brachial plexus, subscapularis muscle. Lateral lesions include lateral cord of brachial plexus, coracobrachialis. Medial lesions include medial cord of brachial plexus, medial pectoral nerve and axillary vein. अब थर्ड पार्ट को फिर से एक बार डायग्राम से देखते हैं क्या लिखा है. It is a third part of axillary artery. Then it includes anterior lesions include skin, the superficial fascia, deep fascia, pectoralis major muscle. Then the lateral lesions include the short head of the bicep brachii muscle, coracobrachialis muscle, lateral root of the median nerve, musculocutaneous nerve. The posterior lesions include axillary nerve, radial nerve, and subscapularis muscle. The posterior lesions include medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, then ulnar nerve, then medial root of median nerve, and a vein which is the axillary vein. ये सब हुआ थर्ड पार्ट के रिलेशंस के बारे में. देख लेते हैं डायग्राम नोट्स में क्या लिखा है. थर्ड पार्ट में एंटीरियर रिलेशंस इंक्लूड स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, pectoralis major and medial root of median nerve. The posterior lesions include the radial nerve, axillary nerve, subscapularis muscle, latissimus dorsi and teres major muscle. It in lower part. The lateral lesions include coracobrachialis, musculocutaneous nerve, lateral root of median nerve, trunk of median nerve. Medial lesions include axillary vein, medial cutaneous nerve of forearm, medial cutaneous nerve of arm, ulnar nerve, axillary artery, axillary vein, and medial to is the medial cutaneous nerve of arm. Branches include from the first part अभी हमने देखा था डायग्राम में अरेजिस दी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. सेकेंड पार्ट में से दो आर्टरी अरेज करती है, थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी. थर्ड पार्ट में से अरेज करती है subscapular artery. From subscapular artery another artery arises which is a circumflex scapular artery. Second is the anterior and the posterior circumflex humeral artery. अब हम ब्रांचेस को डिटेल में पढ़ेंगे थ्रू अ डायग्राम ऑफ पीडी चौरसिया. फिर से एक बार देख लेते हैं उसके ओरिएंटेशन के बारे में. यह है हमारी एक्सिलरी आर्टरी विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल. अब पेक्टोरलिस माइनर जो मसल है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज पोस्टीरियर एंड थर्ड पार्ट उसके डिस्टली है पेक्टोरलिस माइनर मसल के. फर्स्ट पार्ट में से अरेज करती है एक आर्टरी विच इज अ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, अ सिंगल आर्टरी अरेसिस. फ्रॉम सेकंड पार्ट विच इज पोस्टीरियर अरेसिस टू आर्टरीज, थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी एंड सेकंड इज अ लेटरल थोरेसिक आर्टरी. थर्ड पार्ट में से फर्दर थ्री ब्रांचेस अरेज करती है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, posterior circumflex humeral artery and subscapular artery. From subscapular artery arises another artery which is the circumflex scapular artery. जब हम बात करें सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी की तो सिर्फ यही याद रखो कि जो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है वो फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है और पेक्टोरल मसल के दो मसल्स को सप्लाई करती है विच इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड डीप टू द पेक्टोरलिस मेजर मसल इज द पेक्टोरलिस मसल माइनर मसल along with the muscles of the lateral thoracic wall. देन सेकेंड पार्ट में से अरेज करती है एक आर्टरी या थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी. थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी जो है एक फेशिया को पियर्स करती है विच इज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया. अभी समझने के लिए आप यही समझो कि पेक्टोरलिस मेजर के नीचे एक फाइब्रस शीट प्रेजेंट होती है विच कवर्स द पेक्टोरलिस माइनर मसल एंड दैट फाइब्रस शीट इज अ क्लेवी पेक्टोरल फेशिया एंड दिस क्लेवी पेक्टोरल फेशिया इज पियर्स बाय दिस थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी एंड सून ये टर्मिनेट होती है फोर ब्रांचेस के अंदर. और क्लेविकुलर ब्रांच, ये जो क्लेविकुलर ब्रांच है सप्लाई करती है एक मसल को विच इज इंसर्टेड इन द क्लेविकल बोन एंड दैट मसल इज सबक्लेवियस मसल. सेकेंड ब्रांच इज deltoid branch. This branch which can be seen is a deltoid branch and this deltoid branch supplies the deltoid muscle which is responsible for our rounded contour of the shoulder joint. Third branch is the pectoral branch.
पेक्टोरल ब्रांच एज अ नेम सजेस्ट सप्लाई करती है पेक्टोरल मसल्स को विच आर द पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल। फोर्थ ब्रांच इज इट्स एक्रोमियल ब्रांच। दिस एक्रोमियल ब्रांच जो है वो एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करेगी अराउंड द स्केपुला। Then second artery which arises from the second part of the axillary artery is a lateral thoracic artery। ये जो lateral thoracic artery है फीमेल्स में लार्जर होती है और सप्लाई करती है फीमेल्स के ब्रेस्ट को बाय सप्लाइंग और लेटरल मेमोरी ब्रांचेस। थर्ड पार्ट में से 3 ब्रांचेस अराइज करती है। सबस्केपुलर आर्टरी, फ्रॉम द सबस्केपुलर आर्टरी another sub branch arises which is the circumflex scapular artery, then the anterior circumflex humeral artery and the posterior circumflex humeral artery। सबसे पहले पढ़ते हैं सबस्केपुलर आर्टरी के बारे में। जो सबस्केपुलर आर्टरी है सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की। सबस्केपुलर जो आर्टरी है वो टर्मिनेट होती है एट द इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। अभी जो स्केपुला है उसके पास 3 एंगल्स होती हैं, अ सुपीरियर एंगल, द इंफीरियर एंगल एंड द लेटरल एंगल। इसके पास 2 सरफेस होती है, वेंट्रल सरफेस। In ventral surface there is a fossa which is called as a subscapular fossa. On the dorsal surface there are 2 fossa. Above the spine of scapula is a supraspinous fossa and below the spine of scapula there is an infraspinous fossa। अब ये जो infraspinous fossa है उसके अंदर एक मसल होती है which is the infraspinatus muscle। supraspinous fossa के अंदर एक मसल होती है which is a supraspinatus muscle और subscapular fossa के अंदर एक और मसल होती है which is the subscapularis muscle। तो ये जो सबस्केपुलर आर्टरी है वो टर्मिनेट होती है एट द इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला और सप्लाई करती है 2 मसल को विच इज द पेक्टोरलिस माइनर मसल एंड द लैटिसिमस डोर्सी मसल। दिस लैटिसिमस डोर्सी मसल इज अ मसल ऑफ द पैक। उसके बाद ये जो सबस्केपुलर आर्टरी है वो पास करेगी थ्रू द अपर ट्रायंगुलर स्पेस। अब 3 इंटरमस्कुलर स्पेस प्रेजेंट होती है विच आर दी अपर ट्रायंगुलर स्पेस, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस एंड दी क्वाड्रेंगुलर स्पेस। अब इसको हम एक सेपरेट वीडियो पे हम पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ यही याद रखो 3 स्पेस होती है विच कैन बी अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस। तो ये जो सबस्केपुलर आर्टरी है वो पास करेगी थ्रू दी अपर ट्रायंगुलर स्पेस और एट दी सोनी डिवाइड होती है अनदर ब्रांच के अंदर विच इज द सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। ये जो सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी है ये लार्जर ब्रांच है एज कम्पेयर टू इट्स कंटिन्यूशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। इट इज़ अ मोर लार्जर ब्रांच। ओके, अब जो सेकेंड ब्रांच है विच कैन बी सीन एज द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी विच अराइजेस फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। ये जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो पास करेगी थ्रू द एंटीरियर of the bicipital groove and form the anastomosis around the surgical neck of the humerus with the posterior circumflex humeral artery। ये जो anterior circumflex humeral artery है एक ब्रांच प्रोवाइड करती है which is the ascending branch of the anterior circumflex humeral artery। ये जो ascending branch है वो पास करेगी थ्रू द bicipital groove which is bridged by a ligament which is a transverse humeral ligament। इसको समझते हैं। ये जो है पेन ग्रेटर ट्यूबरिकल है ह्यूमरस के, ये दूसरी पेन है इज अ लेसर ट्यूबरिकल ऑफ ह्यूमरस। इन दोनों के बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट है विच इज बाइसिपिटल ग्रूव और ये बाइसिपिटल ग्रूव ब्रिज होता है बाय अ लिगामेंट विच इज़ अ ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। और इस ग्रूव में से 2 चीज़ पास होती है विच इज़ अ टेंडन एंड आर्टरी। जो टेंडन है इट इज़ ए लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई मसल एंड जो आर्टरी है इज द एसेंडिंग ब्रांच ऑफ द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ओके, देन थर्ड ब्रांच जो अरेस्ट करती है फ्रॉम दी एक्सिलरी आर्टरी इज ए पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी इज अ लार्जर ब्रांच एज कम्पेयर टू एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी विच अराइजेस फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी और ये पास करेगी पोस्टीरियरली टू द क्वाड्रेंगुलर स्पेस अकम्पेनिड बाय द नर्व विच इज एक्सिलरी नर्व। ये जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो एनास्टोमोस करेगी विद द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ एंड फॉर्म करेंगे आर्टियल एनास्टोमोसिस अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ये सप्लाई करती है 2 जॉइंट को, अ शोल्डर जॉइंट एंड एन एल्बो जॉइंट। तो ये सब हो गया पूरी एक्सिलरी आर्टरी के बारे में, उसके रिलेशंस हमने पढ़े, उसकी आर्टरीज पढ़ी, देन उसकी आर्टरीज की हमने डिटेलिंग भी पढ़ी विद द डायग्राम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सिलरी आर्टरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।